Hello guys. So my interview was with Brajanga sir, and before interview, and you all know that Brajanga sir hype that if you are going to face him, already you have something like you have idea about that he don't easily get selected. So my thought process was like. I was just imagining myself like I was meditating like this, and I was feeling my nerve. I was feeling my like chest pain from here there. My hands. I was feeling a numbness in my hands. Like so, what I did, I started listening like 1 2 hours before, and I just cleaned my room, everything to make a good vibe. I started listening mantra. Okay, first I listened some yogic mantra, and then after I in silence I just thought of it, that why I want to get selected. And when I made this dream that to get selected, then I was just going in the flashback, and I was seeing that the all the failures that came in my life. I wanted to join IIT. For that, I missed that opportunity because of some only some amount of uh, work, some amount of preparation, little preparation. If I would have done more that little done, then I would have selected in a very good company, very good college at that time. But I didn't got that. I failed out, and for that, for preparation of that, I had gone in the quota. And for a middle class family, a boy is going in quota means father is believing him in on him that he is going to achieve that something. But later I didn't got that. So that trauma was still in my mind. So I was just thinking all about this. Then what was the second trauma was that uh, uh, I got to know about that this merchant navy thing, that in this profession you can roam around the world, and all the things like you can get to explore more. Okay, along with the working and all. And it I got attracted towards this field because in my childhood there was one person who was sailor, and his lifestyle, his talking way, the experience he used to share with us was mesmerizing, mesmerizing. And he was a friend of my sir, one of the sir. So mm, then what was the second trauma I was talking about? That I got 59 number in mathematics in class 12, because and I had already gotten the thing, gotten idea about that Anglo wants 60 plus percentage. Okay, and in every subject I got 68 69 in chemistry, physics, and in math 59. God, I said all I have already lost IIT thing. I didn't get a good college, and so I got a third year college. So without telling my family, okay, I applied for improvement form. Okay, and only with 600 rupees I went to Allahabad by myself, and I had no money. I had no money to stay in the hotel. So near Ganga, that river, I still remember. At that time, there was a Kumbh Mela. Okay, Kumbh Mela. There was so much cold there, and I had only one shawl with my, and I had gone to given my the improvement exam for that, because I had got 59 number.
And I still remember in the night I had reached, in the late evening I had reached, I had to spend a night there, and in the morning there was a improvement exam mine. So I had no money with me, and I didn't told about this, that my I got this number, and they would be like, you are preparing for, if I would have told, they would be like, you are prepare, you have prepared for IIT and everything, but you got this much less in board. Better you would not have prepared that. Okay, so in that fear I didn't that, but I still remember the I spent the night near the that river, Sangam River in Allahabad, and there was so much cold, and there was some bed that has been made for the common people near the at that time Kumbh Mela was there. My English, rest in peace, sorry. So what I did, like I was feeling so cold, I just collected the rubbish, rubbish, I wrecks, the and I burned it, and by from that I got heat, and by that heat I spent all the night. And in the early morning, at that time, since there was a Kumbh Mela, everything was so costly, and I had 600 rupees, and from 600 I had to buy uh, 100 four, I bought four puris with 100 rupees, only four puris with 100 rupees for breakfast. So I bought, and then after I given exam mathematics, for that I prepared so hard, and that 59 number get converted into the 71 number. And now I am feeling that if I would have gotten the 61 as 63 number, then I would have not be I would I will be, I right now I would have not be eligible for that this and Anglo interview, because now this is 65% now. In recent 2 3 years it becomes 65%, isn't Avito? So it was a good thing for me. Like I crossed the 71%, and all over the aggregate percentage for every subject I got 65 plus. Okay, so dots there connected now. So I'm going little longer, but I had to tell this because the Yeah, day yeah, making sense. So this was the end trauma of your uh, yeah. before the interview. Uh, This was the okay. second was in your mind. Yeah. And then after then after I had no hope from the college that college will give me the placement thing. So what I decided that I will be choosing mechanical engineering, and then I will go for marine engineering with sponsorship. I had the idea about the sponsorship. So for that only I chose mechanical engineering. And yeah, I was saying that the lifestyle I like that. Yes, I want, because I belong to very small town like a small town village. There is there is a very limited possibilities. There is nothing, yeah. I literally feel like going in their cage. I just go one place there. In the evening, I just go to take the milk from the dairy and return to home. Okay, nothing is there. So, what I can say. So this was all in the mind. Then I thought that now mechanical engineering I have taken, and the second and the other thought was that the from the 4 year I just prepared all the technical interview. This concept of air, this concept why we keep discharge valve shut, I knew about this in my second year, because from the second year, third year, I was controlling the Telegram group. I was just answering all the thing. I was the person uh, who was dealing with the Telegram. Okay, from the 2 years, I made up to 7,000 people. Okay, I used to polling and all. So I was just seeing that yes, I was just feeling that I have prepared. I am, my dedication was this much. And then
all of sudden I remembered all the thing, the session and all the thing that I have given. Only one thing was in my mind, that okay, I have given my best and nothing more than this possible. Okay, so anyhow, whosoever is Brajanga sir is, he is going to select me. If he is not going to select me, this would be unfair. This would be unfair. My whole perspective towards life will be changed, and I will be no more like, I will become stone. Okay, I was like that only. And then after I started a song, that is Aram Hai Prachand, that and my sister had told me that, Gyan, the moment you will think that you are not going to selected, the energy will exchange to the interviewer, and trust me, he will not select you. So never ever thought of that you are not going to select it. So what I have written, I have written 4 to 5 points after getting selected in interview, because this was not only my interview, this was all about my perspective, that this has changed my perspective, to change, to see the things. And I will be telling about the things after my interview, what was the perspective. So the song I was listening, in that song there is a Arambe Prachand, there is a saying, there is a line in which the line was, जो लड़ सका है वही तो महान है. ओके, एंड युद्ध ही तो वीर का परिणाम है. तो आई वॉज लाइक दैट, वार इज द लाइक प्रमाण है, वार इज द लाइक, what is pramad is, war is proof, like you have to prove in a war that, and there is no loser, no winner. If one is fighter, he is great. Nothing matter if he lose or lost. Today my English is very bad. I am not, because I have left meeting, and from the last couple of days, 10 to 12 days, I am not doing any meeting, that's why. So pardon me for that, but I was listening, and I was just thinking that I am going to give my best. I am going to, my everything was numb. I was just uh, tapping my that I was going to, कि जितना मुझे आता है मैं बताऊंगा, क्या पूछेगा वो मेरे फेफड़े से निकाल के बताऊंगा मैं, वो करने जा रहा है मुझे सेलेक्ट. पूछो जो मैंने यहाँ, मैं सोच रहा हूँ मैंने यहाँ सारे दिन सारे रात बता के इतने क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, क्या ऐसा चीज है कि वो पूछेगा, और मैं तो करने जा रहा हूँ चाहे कुछ होगा. ठीक है, ऐसा मतलब आई वॉज जस्ट क्रिएटिंग ए वाइब्रेशन कि ही इज गोइंग टू सेलेक्ट मी, ही इज कमिंग टू सेलेक्ट मी. मुझे नहीं पता कि कोई सेलेक्ट हुआ है कि नहीं सेलेक्ट हुआ है, मैं सेलेक्ट होने वाला हूँ. और जब तक मैं रिजेक्ट नहीं हो जाता, मैं ये मान के चलूंगा सेलेक्ट हो गया. अगर रिजेक्ट हो जाऊंगा तो वो उसके बाद सोचेगा. ठीक है, मैं सेलेक्ट हूँ, आई एम ऑलरेडी सेलेक्टेड. आई वॉज जस्ट प्रिपेयरिंग दैट हाउ आई विल बी स्पीकिंग द आंसर नाउ. आफ्टर हियरिंग दैट सॉन्ग, जो लड़ सका है वही तो महान है, कि आई हैव टू फेस एनी हाउ, आई हैव टू फेस विथ माई हाई हेड. प्रणीत सर ने मुझसे बोला था कि ज्ञान, तू टेंशन लेके देगा, तू कैसे करेगा, तो हर बार नहीं निकलेगा, और तू कैजुअल रह के देगा, क्योंकि मैं तेरे जानता हूं कि तूने कितनी मेहनत की है और तुझे तेरे टेक्निकल नॉलेज सही है. उन्होंने मुझे 5 बजे भोर में मैसेज किया है कि ज्ञान, मैंने सपना देखा कि तेरा हो गया है, तू बस काम रही हो. मुझे नहीं पता कि वो सच बोल रहे थे या एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट क्रिएट किया जाता है जिसको प्लासिबो इफेक्ट बोलते हैं, वो मैंने कहीं पढ़ा था. यार गाइस, कैन आई कैरी और विथ हिंदी, हिंदी में बोल सकता हूँ यार, If इंग्लिश you आज mix it right now, you can mix. या, You can, yeah. क्योंकि इतनी अच्छी कहानी मैंने इंग्लिश में सुनाई, वो मुझे खुद नहीं समझ में आई, ऑडियंस को क्या समझ में आएगी. ठीक है, जो वो मैंने उसको मैं एक बार फिर से बता दे रहा हूँ. जब 59 नंबर आया था भाई, मेरे पास पैसे इतने कम थे. उसके बाद जो है मैं खुद से गया इलाहाबाद, पेपर दिया, 100 रुपए की 4 पूड़ी खाई. फिर जो है जनरल टिकट में मैं जो है 2 दिन वहां रहा और आया. जब आके अपने रूम में आया तो मेरे ये पूरे कंधे वंधे सब सूख गए थे एकदम. जो मेरा रूममेट था कह रहा था ये कैसे 2 दिन में सूख गए.
ठीक है। तो वो चीज था मेरा, वो 59 से 71 होना, वह जब लाइक ऐसा लगता है कि इसी दिन के लिए हुआ था। अगर वो 63 होता, क्योंकि उसके बाद एंग्लो का जो है कट ऑफ चेंज हुआ, देन आफ्टर ओनली एंग्लो कट ऑफ फॉर परसेंटेज चेंज, दैट इज 65%। ओके, सो अब मैं कहा था कि हाँ, मैं सोच रहा था कि नहीं मुझे निकालना है, ठीक है। और प्रीत सर की बात याद आ रही थी कि काम होके देना, चिल कैजुअल एकदम, ठीक है। सारे निगेटिव एनर्जी सारे ये, और आई वाज जस्ट सेइंग दैट कि जो लड़ सका है वही तो महान है। वो जो गाना हो रहा था ना, मैं जैसे पागल, मुझे लग रहा था कि मैं, मेरे अंदर क्या हो रहा है, मेरे अंदर क्या हो रहा है, कि अब मैं कैसा बनता जा रहा हूँ। वो गाना बज रहा है पीछे बैकग्राउंड में, और मैं कह रहा हूँ युद्ध ही तो वीर का प्रमाण है। उस समय मैं सोच रहा हूँ कि मैं उसको फेस कर रहा हूँ, ठीक है। मुझे अपने आप को आज प्रूफ करना है। आज मेरा फाइनल डे है कि जितना भी ये पंप सम से लेके जितना भी मैंने डिस्कस किया है, इतना सबको घुस घुस के अपने आप को पंप समझाते समय अपने आप को पंप इमेजिन किया है। तो आज मुझे युद्ध को, जिसको मतलब युद्ध है तो वीर का प्रमाण है, आज मुझे सच्चा वीर बनना है, ठीक है। और हार हो या जीत, लेकिन जो लड़ सका है वही तो महान है। अब मैं जिंदगी में ये गाना हमेशा सुनने वाला हूँ। कोई लेफ्ट कर गया मीटिंग, बट सॉरी फॉर दैट। मुझे बताना है, मैं कैसे एक्सप्लेन करूँ, मुझे अच्छे से इंग्लिश नहीं आ रहा, मैं ऐसा ही हूँ, ठीक है। तो मैंने ऐसा किया, उसके बाद मैं करने वाला हूँ उसके बाद क्या हुआ कि अब होगा। फिर मैंने अपने आप को, जब वो गाने चल रहे थे, अपने आप को इमेजिन कर रहा था, मैं इमेजिन कर रहा था कि मैं ब्रजंगा सर को आंसर दे रहा हूँ। मैं इमेजिन कर रहा था कि ब्रजंगा सर मुझसे ये पूछ रहे हैं कि व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ हैविंग एयर इन सेंट्रीफ्यूगल पंप। तो मैं इमेजिन कर रहा हूँ, सर मैं ऐसे बोल रहा हूँ, ठीक है, सर द इफेक्ट्स ऑफ हैविंग सेंट्रीफ्यूगल पंप। I was just imagining all the answer, all the 30 answer. कि he's asking my leg this, tell me about this and tell me about this. And I was also imagining that if I have spoken wrong, sir pardon me for that. But let me think. Like मैं हर सिनारियो को इमेजिन कर रहा था कि क्या क्या सिनारियो हो सकता है, और उस सिनारियो को मैं कैसे डील करूंगा। और इतने क्वेश्चन थे, कंप्रेसर सेपरेट को कैसे बताऊंगा उसके, और मैं ये कैसे बताऊंगा कि डिस्चार्ज वाल्व कैसे, डिस्चार्ज वाल्व शट क्यों किया जाता है। और वो बता, मैं ऐसा इमेजिन कर रहा था कि सर सामने है, मैं ऐसे बता रहा हूँ, और मैं कह रहा था मैं एनिमेशन यूज करूंगा, मैं अपने हाथ को यूज करूंगा अगर वो कुछ बोलते। वो फॉर्मल, ये टेक्निकल इंटरव्यू है, वो पर्सनालिटी, वो आईएएस का इंटरव्यू नहीं है। कैसे हमें चीजें को सोचने पड़ती है, जो मशीन कैसे क्या है, नहीं तो रट के आके ऐसे बोल देंगे तो कुछ चीजें याद रहेगी, कुछ चीज भूल जाएगी। और ब्रेगाज सर जो है ऐसे 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 करेंगे, और उनको देखते हुए वो चीज भूल जाएगी। अब मैंने एक चीज डिसाइड किया था कि मुझे कैमरे को सिर्फ देखना है, मुझे कैमरे को देखना है, इंटरव्यूअर को देखना ही नहीं, ठीक है। ऑल ऑफ सडन ब्रिजेंद्र सर का मेल आ गया, ठीक है। अब मैंने कहा यार, अब सही समय है। मैं जैसे एक, जैसे नहीं होता है कि मैंने अपने आप को सुपर इम्पोज कर लिया था कि नहीं अब सही समय, अभी दिखाता हूं मैं, आजा तू, तेरी जात का पैदा मारो, आजा तू। ठीक है। देन आई जस्ट सेलेक्टेड किया मैं, अब सब अच्छा होगा। और मैं, ठीक है, और मैं ऐसे कर रहा था, जैसे ये हाथ है ना, मैं अब अचानक से एक तरीके से मेरा दो दो मन, एक मन को मैंने अभी स्ट्रांग बनाया, एक मन जो है वो सारे पीयर प्रेशर कितने चीज दाव पे लगाया, नहीं होगा तो क्या होगा, हर चीज सारे इमोशनल वो कर रहा था। तो मैंने एक साइकोलॉजी में पढ़ा था, ये जो पोर्शन होता है ऐसे ये करना, तुम हर चीज को कंसंट्रेट कर देते हो, सारी एनर्जीज को अपने जो भी आता है, और ये अपना फिर तुम्हारा दिमाग काम हो जाता है। तो मैं ऐसे कर रहा था, ठीक है, हाँ ऐसे कर रहा था, दोनों हाथ ऐसे रख लिया था। और जैसे ही वो कनेक्ट हुआ, मैं कहा गुड, ठीक है, आवाज उधर से आया लेकिन कैमरा नहीं स्टार्ट हुआ। मैंने कहा गुड आफ्टरनून सर, कोई आवाज नहीं। कहता मैं हेलो सर कैन यू लिसन मी, कोई आवाज नहीं, ठीक है। मैं कहा, मेरे दिमाग में आया कि ये मेरा बॉडी लैंग्वेज चेक कर रहा है कि अगर मैं नहीं बोलता हूँ कुछ तो क्या करता है। ठीक है, हाँ कोई बात है, चेक कर ले, तू कुछ भी पूछेगा आज तो बता के रहूंगा, ठीक है, या तो। और मैं ऐसा इमेजिन कर रहा था, मैं एक चीज तो बताना भूल गया, जो वो गाना नहीं है कि
रंग केसरी हो या दंग केसरी हो, आज तुम या जीवन का दान हो, आज तुम एक तीर बाण पे उतार दो। लाइक मैं उसके क्वेश्चन को इमेजिन कर रहा था कि वो क्वेश्चन नहीं है, वो तलवार है, वार करने के लिए आया मुझे, और मुझे आंसर से जो है उसको वो करना है, ठीक है, जवाब देके उसको खत्म करना है। आज आज फैसला हो जाएगा जीवन और मृत्यु का, ठीक है। मैं एकदम, मतलब कि मैं नॉर्मल कंडीशन में था ही नहीं उस समय कि आज तो आर या तो पार हो जाए, ठीक है। तो यही सोच रहा था कि, और ऐसे ऐसे कर रहा था मैं, और ऐसे कर रहा था, ऐसे कर रहा था कि सोचे कि वो ऐसा ना लगे कि अंडर कॉन्फिडेंट हो, ऐसे बैठा हूँ, ठीक है। मैं कैजुअल बिहेव कर रहा था। फिर अचानक से आ जाएगा उधर से आवाज आया मैं कहा हाय सर, हेलो, गुड आफ्टरनून सर, गुड आफ्टरनून, वेयर फ्रॉम यू सर। आई वॉज लाइक, मैं उसको देखा ही नहीं भाई, कहाँ वहाँ कि नहीं, बस इतना आ गया कि वो हो गया। मैं ऐसा सोच रहा था कि मैं बस जैसे तुम्हें इंटरव्यू देता हूँ, सबको इंटरव्यू देता हूँ, जैसे सबके सामने बात करता हूँ वैसे करूंगा, ठीक है, बस कान में आ गया। आई सेड बेसिकली सर आई एम फ्रॉम वाराणसी, बट राइट नाउ आई एम इन ग्रेटर नोएडा, दैट इज इन माई कॉलेज। ओके, सो यू आर इन कॉलेज? यस सर। वेयर डू यू स्टडी? सर आई स्टडी इन गौतम बुद्धा यूनिवर्सिटी। What Gautam Buddha? Which university? Sir, Gautam Buddha University is the second largest university after BHU sir. मैंने उसके वो मन में क्रिएट कर दिया कि भाई ही हैज समथिंग, मतलब ऐसे कॉलेज में है ये, ठीक है, BHU का। Then he asked me what's your BTech percentage till now. Like he got to know me that are you in college? Then I said yes sir, I am in college. I will be graduating by the next month. Okay. Then he asked me what is your BTech percent, and I said, and मुझे सारा प्रेशर और नर्वसनेस जो ब्रजंगा सर का था वो महसूस हो रहा था, लेकिन ये मैंने दोनों एल्बो से, ये दोनों एल्बो से ये जो है, जो चेयर का वो नहीं होता है, उसको प्रेस करके वो चीज ट्रांसफर कर रहा था चेयर को। भाई तू नर्वस ले ले, ठीक है, मेरे को मत नर्वस दे, ठीक है। तो मैं ऐसे कर रहा था सर। माई बीटेक परसेंटेज टिल नाउ इज 60 or 80.3%, and what's your 12 PCM? I said 69.6%. Okay. What's your father do? I said my father is a shopkeeper. Which shopkeeper? Grocery shopkeeper. We sell masala, soap, and all. I was, and he asked the next question. I should be going on with the questions like, then. Yeah, we can Uh, transition into that immediately. okay, okay. Then he asked me, what's your siblings do and all. So then he asked me, have you pen and paper? Yes, sir, I have. Now you can carry on the video. What was the question? And he asked me. Okay, so then followed by this, he asked you, is this the first attempt of the interviews? How did you reply to that? Yes, sir, this is my first time. This is my first time. I said. Okay, first attempt at Anglo or first attempt at GME? And the first time. Both ways you said first time, right? Yeah, first time I said. Okay, so the next question is, what were your strength weaknesses? I think well, I think he didn't ask me this question after that. He asked me in last. Okay. Before this was okay. Before you can carry on with the technical things. Okay. And how मैंने कैसे जवाब दिया वो मैं बताऊंगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन था, उसने पूछा था कि हैव यू पेन एंड पेपर? I said yes sir, I have. Can you draw a sketch of centrifugal pump? तो मैंने 50 बार सेंट्रीफ्यूगल पंप बनाया था 30 सेकेंड के अंदर। यस आई हैव ड्रॉन। और उसके बाद बोला सर शुड आई लेबल इट और नो जस्ट शो मी। सर यू कैन, ओके सर, सो शो में मैंने पता था आई हैव जस्ट मतलब मैंने डायरेक्शन दिखाया था, मुझे पता था वो डायरेक्शन पूछेगा। डायरेक्शन सर, डायरेक्शन इज इम्पेलर इज रोटेटिंग टुवर्ड द डिस्चार्ज साइड ऑफ वॉलेट केसिंग। ओके,
एंड सर ओके सो नियर टू मी सर आई हैव मेट, और मैं ऐसे उसको बता रहा था कि मेरा फोकस था उसको ऐसे बताने का, भाई मैंने जितना बनाया उतना नहीं जानता हूँ, इसके आगे भी जानता हूँ मैं कुछ। मैं कहा सर कैन यू सी दिस फुटबॉल, सक्शन सक्शन पाइप, इम्पेलर, आई इम्पेलर, बैकवर्ड कपलेंट, ठीक है। वो देख रहा था ऐसे। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डिस्चार्ज प्रेशर इज क्रिएटेड एट द इन सेंट्रीफ्यूगल पंप। फिर मैंने ब्रेक लिया थोड़ा सा, फिर मैंने इमेजिन किया कि मैं कैसे इसको आंसर दे रहा था, वो इमेजिन। फिर मैंने कहा सर द डिस्चार्ज प्रेशर इज क्रिएटेड बिकॉज ऑफ द डिजाइन ऑफ द वॉल्यूट केसिंग of centrifugal pump whose volumes keeps on increasing. When we start the motor, the impeller rotates and imparts kinetic energy to the fluid particles because of centrifugal force exerted by the impeller, and uh, due to which the fluid get displaces radially outward toward the discharge side of casing. And when fluid goes through the discharge side of volute casing, the volume, since volume of volute casing keeps on increasing, due to this the velocity of the fluid will decrease, and hence kinetic energy decrease. And the moment when kinetic energy will decrease, it will converting into the pressure energy due to energy conservation principle. Sir, this is how discharge pressure is created. I was just animating, thinking, making him that, feeling him that, कि मैं उसको बता रहा था भाई कि मैं इमेजिन करके सोच के कितना घुसा हुआ हूँ उसके अंदर, एक एक चीज वो, ठीक है। और ये Yeah, जो yeah. है, हाँ, और ये जो है ये क्वेश्चन, ये लाइन कि कैसे क्रिएट होता है, वो मैंने 21 बार याद किया कि कैसे, क्योंकि मुझे पता था अगर मैं 21 बार याद कर रहा हूँ, क्योंकि इंटरव्यू में जो फ्लुएंसी होती है, जो तुम्हारा कैपेसिटी होता है, वो डिक्रीज हो जाता है बिकॉज ऑफ द अदर फैक्टर। तो मुझको सेट करके रखना था कि अगर मेरा डिक्रीज होगा तो वो नॉर्मल पे आएगा, इंक्रीज रहेगा तो ऐसे बोलूंगा द डिस्चार्ज प्रेशर इज क्रिएटेड बिकॉज ऑफ द डिजाइन ऑफ द वॉल्यूट के ऐसे बोलो, ठीक है। तो उस तरीके से मैंने ऐसे किया था कि मैं एक सुर में बोल सकता था ऐसे क्वेश्चन, 30 से 50 क्वेश्चन, तो उस हिसाब से मैंने प्रिपेयर किया था। फिर दूसरा क्वेश्चन उन्होंने पूछा कि Why is the discharge valve shut? व्हाई इज द डिस्चार्ज वाल्व शट। मैं ब्रेक ले रहा था इसलिए क्योंकि उसे प्रिंस सर ने बोला था कि अगर मैं तुरंत बोला मैं लटकूंगा, ठीक है। और तो मैंने ऐसे किया, व्हाई डिस्चार्ज वाल्व शट। Sir, we shut the discharge valve to save the power consumption and also to prevent the motor from overheating. Okay, and when we start the motor, there is a because when we start the motor, there is a starting torque required to rotate the impeller from the rest position to a fixed RPM. So initially, when motor start, it draws a lot of current and to compensate the inertia of impeller. And on the other hand, we also know that in a case of centrifugal pump, it draws a lot of current. It is when the flow of fluid is more, it draws a lot of current. So when we keep discharge valve shut, we save this excessive current which which that is required for the flow. And if we do not keep discharge valve shut, the current the motor will draw a large amount of current, and that can cause overheating, and that will draw more power and all. See, it is only one day, I think, and my fluency, my mugging capacity got decreases. मैंने इससे अच्छे से उसे जवाब दिया था, ठीक है। अभी मुझे सोचना पड़ रहा था क्योंकि रटंत विद्या अमंत नहीं, एक कहावत है कि रटने वाला जो है वो ज्यादा तक रहता नहीं है। मैंने इतना रटा है, अभी वो लाइन भूल जा रहा हूँ, लेकिन मैं सोचा तो सारा याद आ गया, ठीक है।
और इंटरव्यू में क्या है कि हम्म, आपके पास प्रेजेंस, आप अगर सोचोगे कि अपना प्रेजेंस आप माइंड यूज करके बोलो, सोच सोच के बोलो, तो आपको ऐसा लगेगा कि अरे, पीयर प्रेशर आ जाएगा कि कहीं मैं ज्यादा सोचूंगा तो ऐसे उसको लगेगा कि नहीं उसको आ नहीं रहा है, तो कुछ तुम much सोच। delay. ना, तो So, मेरे को, so it is a balance of हाँ, whether you can think हाँ, for too long or हाँ, whether you know it. तो मुझे प्रिंस सर ने बोला था कि ज्ञान, मैं तेरे आगे हाथ जोड़ता हूँ, तू ऐसा मत कर, ठीक है। मुझे पता है तुझे पता है सारा कॉन्सेप्ट, लेकिन तू उसको लिख, उसको याद कर, टिप्स पे होने चाहिए। जैसे ही वो बोल रहा है व्हाट इज प्राइमिंग, प्राइमिंग इज द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग एयर फ्रॉम द पंप एंड फिलिंग विद द सेम लिक्विड। तुझे पता है लेकिन तू बोल ऐसे फटाक से, ठीक है। कभी होता है कि प्राइमिंग को क्या है, तो मैंने सारे क्वेश्चन को लिखा, एक सिंपल आंसर बनाया था और बोल रहा था। हाँ, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? Yeah, so this was mentioned properly why the discharge valve is हाँ, shut. हाँ, Next, we come to what is the effect if air comes into the उनका, centrifugal pump. son, son. I took break and said, sir, since air is, and I was, मतलब मेरा एक्सप्रेशन ऐसे चेंज हो रहा था जैसे लग रहा था कि मैं इतने डीप में जा रहा हूँ। अगर मैं कुछ बता रहा हूँ, एयर को बता रहा हूँ कि एयर सेंट्रीफ्यूगल पंप में नहीं घुस गया है, एयर मेरे अंदर घुस गया है, अब मेरा कैपेसिटी डिक्रीज हो गया। ठीक है। क्योंकि मैं उसको देख नहीं रहा था, मैं बस क्वेश्चन क्वेश्चन सुन रहा था और एक्सप्लेन कर रहा था ऐसे कि सर, सिंस एयर इज कंप्रेसिबल and having density 1000 times lesser than the density of water, so the amount of centrifugal force exerted by impeller will decrease by 1000 times, and hence it will not able to create enough suction pressure to at the eye of impeller to suck the liquid, and hence it will keep running dry, and there will be no discharge will taking place. So we can say that the pump capacity will decrease drastically, and due to this dry run of impeller, it will cause overheating. So that's why priming is very important. See the animation, everything. So, without him asking, immediately you only brought in priming. I just only make him that I know about priming concept. If you want to ask me, then I can answer. That's why priming is important. Ashish told me. Okay, but you put Uh, the clue uh, there and kept. I given him clue. There are certain Hmm. कुछ लोगों के जो है टेस्टिमोनियल्स है। मैं बता रहा था कि मैं खुद कभी कभी टेस्टिमोनियल मैं तो रिकॉर्डिंग कर लेता हूँ और उसको डाल देता हूँ, दोबारा देखता नहीं। लेकिन गजानन सर के वजह से जब मैं अपनी ही हमारी मीटिंग देख रहा था, मुझे इतना फ्रूटफुल लग रहा था, मुझे ऐसा लग रहा था मैं भी थोड़ा समझदार हूँ, ठीक है। क्योंकि मैं अपने आप को उतना मतलब जिसका सर के समय मैं कहा तो मैं भी अच्छा लॉजिक दे रहा था, ठीक है। तो उससे ब्रगंजा सर का जो टेस्टिमोनियल था, उनका, आशीष पांडे का और बाकी लोगों का, आशीष दयानंद का, तो उन्होंने बताया था मुझे कि क्लू देना, ठीक है। मैंने सोचा था कि प्राइमिंग को भी एक्सप्लेन कर दूंगा, लेकिन आशीष दयानंद ने बोला था कि नहीं नहीं, बस उसको दे देना, ठीक है, क्लू, क्योंकि बहुत ज्यादा हो जाएगा तो बहुत ज्यादा मोनोटोनस हो जाएगा, बीच में रोक देगा तुम्हें, ठीक है। तो फिर उसने पूछा, क्या पूछा? About the different two-stroke. What are the difference between two stroke engine and four stroke engine ना? Hmm. हाँ, ये करने से पहले जो है मैंने कितनी बार इसको वो किया था, ठीक है। तो मैंने स्टार्ट किया, सर, इन टू स्ट्रोक इंजन the whole cycle of intake compression, हाँ, listen this, intake Hmm. compression, मैं साला ऐसे बता रहा था कि मैं इंजन में घुस गया हूं, ठीक है। ये तुम्हारा, मैंने देखा है कि कॉन्फिडेंस जो है किस लिए ब्रजंगा सर के सामने लोग गिरा देते हैं, किस लिए वो कर देते हैं, ठीक है। ऐसे कर रहे हैं यार, तुम मशीन के बारे में बता रहे हो, मशीन में कंबस्शन हो रहा है तो तुम भी फट जाओ, ठीक है। तुम भी हो जाओ, ठीक है। तो इंजीनियरिंग का मजा लो, इंजीनियरिंग का मजा लो, ठीक है। और अधिक और ये तुम्हारा ये दिखाता है कि, और एक चीज बताने वाला था मैं भूल गया।
चूंकि मैंने मगअप किया था सारा चीज, ठीक है, तो मुझे उसको बिना देखे जो सारा मगअप चीज था वो बोलना था, ठीक है। तो मैंने मैंने ऐसे बोला कि इन टू स्ट्रोक इंजन द होल साइकिल ऑफ इनटेक कंप्रेशन power exhaust is completed in two stroke of the piston. In four stroke engine the whole cycle of intake compression power stroke is completed in four stroke of the engine, फोर स्ट्रोक ऑफ द पिस्टन। और बीच बीच में जो है मेरा जवान लड़खड़ा रहा था, मैं फंबल हो रहा था, लेकिन मैं उसको सही कर रहा था इन फोर स्ट्रोक ऑफ द पिस्टन। ओके, फिर उसके बाद 10 सेकेंड इज in two-stroke engine, the crankshaft revolves once for every complete combustion cycle. In four-stroke engine, the crankshaft revolves twice for every complete combustion cycle. In two-stroke engine, the crankshaft and camshaft rotate at the same RPM, same speed. In four-stroke engine, the crankshaft rotate twice or with twice RPM than that of camshaft. In two-stroke engine, the crankshaft and camshaft are connected with chain drive or belt drive because they rotate with the same speed. In four stroke engine the crankshaft and camshaft are connected with the timing gear because they rotate with different speed. In two stroke engine it has scavenge port and exhaust valve. In four stroke engine it has both inlet valve and exhaust valve. In two stroke engine the efficiency of the thermal efficiency is lesser because of poor scavenging. In four stroke engine the thermal efficiency is higher because of better scavenging. In two stroke engine the power to weight ratio is more. In four stroke engine the power to weight ratio is less. In two stroke engine it is required lighter flywheel because the torque produced is less irregular. In four stroke engine it is required a very heavier flywheel because the torque produced is more irregular. In two stroke engines are simpler design engine having less moving part. Four stroke engines are heavier design, complex design engines and having more moving parts. Two stroke engines are noisy, four stroke engines are less noisy. Two stroke engines are bi-directional engine, four stroke engines are unidirectional engine. Two stroke engine are used as a main engine on board ship. Four stroke engine are used as auxiliary engine on board ship. Two stroke engines in two stroke engine the length of stroke is relatively longer. That's why in two stroke engine it is cross head bearing is required and called cross head engine. In four stroke engine the length of stroke is relatively shorter. That's why that is why it do not require cross head bearing and hence called trunk type piston. In two stroke engine there is stuffing box required which separate the crankcase and cylinder case because two different type of lubrication oil is used for two stroke engine. Four stroke engine there is no stuffing box required because same quality of lubrication lube oil is used for lubrication purpose. You know, 15 differences with two stroke यहाँ है तो यही है, फोर स्ट्रोक यहाँ है तो यही है। वो इम्प्रेस हो रहा था, मैं हल्का हल्का देख रहा था, मैं कहा तुझे तो देखूंगा नहीं मैं, मुझे बताने दे, ठीक है। आप And कोई this, I think, one आप before you are practicing, right? हाँ हाँ, क्या 1 or 2 days before the interview, you're practicing this, like, no waste of time forming the sentences. There, like, per sentence thing you're practicing that's why I asked you for ना, this person. yeah, that's why I sent you na, so then you So you told want me, proper sent one everything, tuck tuck. yeah, I think your voice is lagging. Oh, it's lagging. Okay, fine, fine. Someone said yes, I will be sharing all the question in group also. Actually Avitu has all the questions of mine, okay, and I think I uh Chaman Chetan Sadanand Sarupa, oh long name। तो मैं ये कह रहा था कि कन्विक्शन बहुत जरूरी है इंटरव्यू में, और रॉकेट साइंस तो पूछेगा नहीं चाहे कोई हो। उनके मुंह से मैं आजाद भाई का इंटरव्यू है, आप करिश्मा कर सकते हो, ठीक है, वो रॉकेट साइंस पूछेगा नहीं बस। और क्या है कि जो हम खुद से आंसर बनाते हैं ना उसकी बात ही कुछ अलग होती है,
जो खुद से ड्राफ्ट करते हैं आंसर, क्योंकि आप बहुत बार वो कॉन्सेप्ट पढ़े होते हो, उसके बाद वो चीज अपने आम भाषा में बनाते हो। आम भाषा में कोई चीज बताना इज उसके पीछे बहुत सारी मेहनत होती है, ठीक है। Skill almost. अब मैं जो है वो चीज कैसे बताता उसको कि सर एयर कंप्रेसिबल है तो ये कम घूमेगा तो कम खुद को अपने आप को कंप्रेस कर लेगा, फिर अगला सेक्शन आगे नहीं बढ़ पाएगा, ये वो। मैं कहा इसको बताने के चक्कर में कहीं भूल ना जाऊं, ठीक है। तो मैंने उसको जो है ड्राफ्ट किया अच्छे से, और इतना बता। And as you are practicing your idea of what is the best optimized answer for you हाँ, specifically. तो मैंने वो पूछा था ना तुमसे कि आई हैड आस्क्ड यू ना कि कैसे मैं बोलूं स्केवेंज पोर्ट का और या, तो द यू सेड Mm-hmm. देन क्या। So you are trying 2 or 3 combinations, whichever one was perfect one you went ahead with for हाँ, finally. तो मैं क्वेश्चन प्रिपेयर कैसे कर रहा था कि मैं पहले क्वेश्चन बना रहा था। मैं कहता हूं कि अगर आपने अच्छे से होमवर्क किया है, आपके सामने शंकर जी भी आ जाए ना पूछने, तो आप बता दोगे, ठीक है। क्योंकि जब मैंने क्वेश्चन का आंसर बनाया था, क्योंकि कुछ क्वेश्चन 50-60 क्वेश्चन है, तो पहला आंसर जो बनाया था वो उतना परफेक्ट नहीं था। जब मैं उसको बोल रहा था और खुद सुन रहा था, तो ऐसा लग रहा था कि इसको और अच्छा किया जा सकता है। तो उसमें से मैंने कुछ काट छाट के एक ऐसे आंसर पे पहुंचा कि जो लगा कि नहीं इतना काम कर सकता है, ठीक है। कब जो वो आंसर था कि कैसे इम्पेलर रोटेट होके इम्पार्ट करता है काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इंक्रीज होता है। अब वही चीज है कि कोई उसको बोलता है कि बिकॉज ऑफ इम्पेलर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एग्जर्टेड एंड इट इम्पार्ट काइनेटिक एनर्जी, या आगे पीछे, लेकिन सही ऐसा बताओ कि जो वो सुने तो उसके मन में जो पिक्चर बने इतना आसान बने पिक्चर कि वो उसको सब समझ में आया। मेरा गला बैठ रहा है यार। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट अबाउट टू स्ट्रोक Next इंजन, question फोर is स्ट्रोक इंजन। हाँ, एजाज भाई हेलो, clear. सुन रहे हो? आवाज नहीं आ रही, आपकी आवाज नहीं आ I रही। think he's having some issue. Yeah. हम्म, Maybe he can put in chat if he's still able to ओके। understand, relate. हाँ, तो मेरे Okay, but एक्सपीरियंस। we go to the next question, हाँ which is हाँ। what is Faraday's law? हम्म, सर फैराडेज लॉ, मैं जैसे थक गया हूं ना, उस समय भी मैं थक जा रहा था, लेकिन मैं पूरी कोशिश कर रहा था कि अपने और अपना जो है, मैंने कई बार ये इमेजिन किया था। मैंने कई बार इमेजिन किया था सर मुझसे पूछ रहे, ब्रजंगा सर मुझसे पूछ रहे फैराडेज लॉ और मैं बता रहा हूँ फैराडेज लॉ के बारे में। ब्रजंगा सर मुझसे पूछ रहे फैराडेज लॉ के बारे में और मैं बता रहा हूँ फैराडेज के बारे में। तो वो एक बार और था, तो एक बार मैंने, हाँ, मैं खुश हो गया, फैराडेज लॉ पूछ लिया यार, ठीक है। फिर मैंने उनको बहुत खुशी खुशी से बताया, सर Faraday's law predicts or defines the relation between an electrical circuit or set of conductor or and magnetic field for an induction of EMF. It has two laws. It consists of two laws. The first law states that whenever there is relative velocity, relative motion between an electrical circuit and a magnetic field, there will be in electromotive force will be induced, EMF will be induced. And second law states that the magnitude of this induced EMF will be equal to the amount of magnetic flux that is linked with the conductor coil. बीच बीच में मेरे आंखें भी बंद हो रही थी, मैं क्या बंद होने दो आंख, मुंह जो है ऐसे होने दो, ऐसे क्या बोलते हैं जो मेरा दांत बोलते समय खिंच जाता है ना, वैसे होने दो, मैं बकरा लगू, लेकिन ये बकरा सही आंसर बताएगा, ठीक है। देखो हर चंदेल छोड़ दिया, मीटिंग लेफ्ट कर दिया, कुछ ज्यादा ओवर एक्टिंग कर दिया उसको ज्यादा ओवर एक्टिंग कर दिया मैंने, ठीक है। उसके बाद मैंने कहा कि Okay, fine. हम्म, Yeah. मैंने बोला कि So we आ, understood this. हम्म, Yeah. मैंने उसके बाद ये बोला कि फार्मूला के बारे में बताया, एम एफ इक्वल टू माइनस एन डी फाइव बाई डी टी, और माइनस के बारे में बताया कि माइनस कहाँ से आया, लेंज लॉ के बारे में आया। तो फिर पूछा लेंज लॉ क्या है, तो लेंज लॉ बताया So कि directly the cross question came. This law. लेंज लॉ, हाँ, लेंज लॉ यार,
अरे आईसी इंजन में भी क्रॉस क्वेश्चन आया, मैंने क्लू दिया ना उसको, स्टफिंग Okay. स्टफिंग बॉक्स कोई नहीं मेंशन करता है, तो Hmm. क्रॉस क्वेश्चन आया, व्हाट स्टफिंग बॉक्स, देन आई से, जब यू नो एक चीज मैं बता रहा हूँ, जो भी मेरा इंटरव्यू देखेगा है मेरे भाइयों, ब्रजंगा सर बहुत ध्यान से सुनते हैं, बहुत कॉन्फिडेंस होके बताना, बिना देखे शुरू से अंत तक, वो तभी टोकेगा जब तुम कुछ गलत बोलोगे या कुछ एक्स्ट्रा बोलोगे। तो ध्यान रखना, जब तुम कोई चीज एक्स्ट्रा बोल रहे हो तो उसके लिए कॉन्फिडेंट रहना कि उनको समझाने के लिए क्या एक्स्ट्रा बोला, उसके पीछे लॉजिक क्या है। अब दूसरा केस होता है गलत बोला, तो उसको प्रूफ करने के लिए तुम और गलत पे गलत नहीं बोलना, नहीं तो पेल दे, सॉरी, नहीं तो रिजेक्ट कर देगा, ठीक है। और ज्यादा अगला क्वेश्चन बस पास्कल्स लॉ और ये सब पूछ के बोलेगा बेस्ड ऑन इंटरव्यू। तो ऐसे केस में आपको क्या करना है, कहना है सॉरी सर, आई एम नॉट वेरी श्योर अबाउट इट, बट आई एम थिंकिंग जस्ट आई एम लैकिंग, और आई थिंक इन लाइक दिस वे दैट इट माइट बी पॉसिबल, सॉरी सर, पार्डन मी फॉर द टाइम बीइंग। कुछ ऐसा अपनी नादानी दिखाना, कुछ, ठीक है भाई, कुछ ऐसा दिखाना कि नहीं भाई, तुमने पढ़ा था, तुम अभी कॉन्सेप्ट पे पहुंच नहीं पा रहे हो, थिंक नहीं कर पा रहे हो, थोड़ा सा तुम्हारा है, लेकिन तुमने कोशिश किया, ठीक है। तो ऐसे अब तुम ये एक क्लू है ब्रजंगा सर का। अभी हाँ, स्टफिंग बॉक्स क्यों रिक्वायर्ड होता है, वो जब सुना Yeah. तो बोला, मैंने बड़े एक्टिंग के साथ कहा, आजाद अहमद लेफ्ट, मैंने बहुत एक्टिंग के साथ कहा, यस सर, द स्टफिंग बॉक्स इज रिक्वायर्ड इन टू स्ट्रोक engine, because in two stroke engine we use two different quality of lubrication oil, one for cylinder oil, one for crankcase oil, because sir we burn the heavy fuel oil, and that produces, after combustion, that produces more acidic gases like sulfur dioxide, nitrogen trioxide, SOx and NOx. And this acid, due to this acidic formation, we need a lubrication oil of higher TBN. TBN is total base number, means highly, that is basic in nature, that neutralizes this acidic formation. So and so this high TBN lube oil cost very much, and 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 since we use a large amount of lubrication oil for two stroke engine, for splash lubrication is, and so that's why for reducing cost and effective management and all, we do this, okay. Hmm. And in case of four stroke we burn good quality of fuel oil, there is no need and all। यार मैं बोल नहीं पा रहा हूँ, मेरा मुंह दर्द करने लगा, ठीक है। तो उसको मैंने एक्सप्लेन Okay, किया, but तो कहा, वो इम्प्रेस finally, हुआ। तो इम्प्रेस होने के बाद मेरे से क्या पूछ रहा है, क्या पूछा था, हाँ, कि डू यू हैव एनी रिलेटिव इन इन सेलिंग एज ए इंजीनियर। Bachchan Navy. हाँ, Okay. उसे ऐसा लगा कि इसको कैसे ये सब परेशान है, स्टफिंग बॉक्स और ये चीज का कैसे होता, तो इसलिए उन्होंने पूछा। तो मैंने कहा नहीं सर, आई विल बी द फर्स्ट जनरेशन ऑफ माई होल फैमिली दैट इज गोइंग टू सेलेक्ट फॉर दिस फील्ड। मेरे मुंह से खुद निकला, इस नो सर, आई एम द फर्स्ट जनरेशन टू गोइंग टू सेलेक्ट इन दिस फील्ड, ओके। Hmm. ओके। Okay, so coming back, हाँ, let's तो फिर वो पूछ रहा था कि व्हाट, यू आर द फर्स्ट जनरेशन। तो हमारा कनेक्शन बढ़ता जा रहा था धीरे धीरे, ठीक है। यस सर, मैं कहा कि सर आई बिलोंग टू, थोड़ा मैं इमोशनल खेला, इमोशनल खेलो भाई, थोड़ा हंसाओ ब्रजंगा सर को, थोड़ा रुलाओ ब्रजंगा सर को, लेकिन कनेक्ट करो, ठीक है, रोबोट मत बने रहो, क्योंकि ब्रजंगा सर रोबोट बन के थक चुके हैं, हजारों इंटरव्यू ले चुके हैं। वो कैसे तुम एक्सेप्ट करते हो कि वो तुमको सब ऐसे सुनोगे, जब तक तुम्हारे अंदर तुम कुछ ऐसा नहीं करोगे, कैजुअल रहो, आराम से भाई, ब्रजंगा सर इज माय एंड विश्वास करो, मैंने 500 बार बोला होगा, ब्रजंगा सर इज द बेस्ट, ब्रजंगा सर इज द बेस्ट,
ही इज द बेस्ट पर्सन टू टेक माई इंटरव्यू, ही इज द बेस्ट पर्सन टू टेक माई इंटरव्यू। ब्रजेंद्र सर आप जहाँ भी हो, आप बहुत अच्छे से रहना, आपको मेरा इंटरव्यू लेना। ठीक है। और क्या होता है ना, ये मैं बता रहा हूँ साइकोलॉजी, ठीक है, कि कैसे आप एनर्जी क्रिएट करते हो, एनर्जी एक्सचेंज करते हो। ठीक है, मुझे एक पल नहीं लग रहा था, मैं अंदर ये कर रहा था, यार कितना अच्छा जा रहा है मेरा इंटरव्यू, मैं अब मुझे कोई दिक्कत नहीं होगा, सब कुछ अच्छा जा रहा है, मैं मुस्कुरा रहा हूँ। तो उसने पूछा कि फर्स्ट पर्सन हो? मैं कहा हाँ सर फर्स्ट पर्सन हूँ। मेरे घर में सारे जो है क्या बोलते हैं बिजनेस वाले हैं, मैं पहला आदमी हूँ जो ग्रेजुएट हो रहा हूँ, ठीक है, मेरे खानदान में। और सर तो वो कह रहे कि तुम्हारे पापा जो है, तुम्हारे पापा मम्मी खुश हैं तुम्हें भेजने के लिए? मैं कहा सर बहुत खुश है वो सर बहुत खुश है, और सर while giving you interview they are praying that I my interview goes well and I selected। तो he laughed, he laughed। अच्छा ज्ञान, can you explain VCRS compressor cycle? VCRS cycle, यार recording, I started again, it was paused, okay, what was the last question? Hmm. What was the last question? So you're mainly talking about the VCRS. VCRS, अब VCRS तो भाई You have to हाँ, start from the start. उससे पहले VCRS से पहले मैं टिप्स दूंगा ये Hmm. कि एक्चुअली आजाद भाई का क्वेश्चन है कि मैं सारा क्वेश्चन जो है आंसर खुद से पूछ रहा हूँ इंटर मिरर के सामने, लेकिन नर्वस हो जा रहा हूँ ब्रजंगा सर के सामने। तो आप इमेजिन आप इमेजिन करो कि आप ब्रगज्जर सर के सामने दे रहे हो, और मैं बता रहा हूँ कि आप तब तक नहीं रुक रहे हो जब तक अपना नहीं कंप्लीट कर ले रहे हो आंसर। ठीक है, होता है ना कि ब्रजंगा सर आप आंसर दे रहे हो, ब्रजंगा सर वैसे देख रहे हैं, ऐसे देख रहे हैं, तो ऐसा लग रहा है अरे मैं गलत तो नहीं दे रहा, अरे मैं गलत तो नहीं दे रहा हूँ, कुछ गड़बड़ी तो नहीं कर दिया, अरे मेरा फोकस मुझे डिस्ट्रैक्ट कर ना। ब्रजेंगा सर ऐसे करे, आपको आंसर कंप्लीट करना, और आंसर बड़ा है तो कंप्लीट करने के बाद आप थैंक यू बोलोगे। मैंने हर आंसर के बाद थैंक यू बोला था, थैंक यू सर। VCRS के बाद थैंक यू सर फॉर लिसनिंग में। ठीक है, थैंक यू मतलब कि आप दिखा रहे हो कि नहीं, आपने मेहनत किया है, आपको बोलने का मौका दिया, आपने अपने आप को एक्सप्लेन किया, यू आर कॉन्फिडेंट एनफ अबाउट दैट, दैट है कि नहीं एविटो? Yeah, for sure, for sure. हाँ, हम बात करने के बाद, कोई चीज बात करने के बाद जनरली कहते हैं ना थैंक यू, या कोई पॉइंट रखने के बाद थैंक Hmm. यू, समाज में बोलते हैं ना ग्रुप डिस्कशन में अपना पॉइंट रखने के बाद थैंक यू, तो आप वो करो, इट्स सिंबल ऑफ कॉन्फिडेंस, हर क्वेश्चन के बाद थैंक यू, थैंक यू सर, थैंक यू सर, ताकि उसको लगे नहीं तुम कंक्लूड You कर। quote the same thing, right? Even if the advocate puts his point, he says, "Thank you, my lord," or whatever. ठीक है, Matlab his confident, his point is हाँ going to make a mark. ठीक है, क्योंकि क्या होता है कि मैंने क्या देखा है कि कई लोग जो है एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है, तो एक्सप्लेन करते करते उसको कंक्लूड नहीं करते हैं, उसी में बचते रहते हैं और सोचते हैं कि इंटरव्यू को समझ में आ गया होगा, और जो है ना इंटरव्यू तुम्हारे कॉन्फिडेंस पे चल रहा है, ठीक है, तो नहीं, कंक्लूड करो थैंक यू सर। ठीक है, कंक्लूड कंक्लूजन इज वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, हम Hmm. VCR की बात आ रही, ठीक है, पहले Yeah. तो वो इम्प्रेस होके मुझसे पूछे कि तुम्हारे यहाँ कोई रिलेटिव है, ठीक है, क्योंकि मेरे क्वेश्चन के आंसर ऐसे थे कि मानो, हाँ है कि नहीं, अ, Yeah. हम्म, तो मैंने कहा नहीं सर मैं ही हूँ। So you said that maybe you have family हाँ, member or something. तो मेरा जो टर्निंग पॉइंट था क्वेश्चन का, जो मेरा खेल बदल के रख दिया, वो VCR साइकिल था। ठीक है, Hmm. क्योंकि मैंने जहां तक सुना था कि ये क्वेश्चन जो है पूछता है 3-4 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन पूछ के लास्ट में बोलता है बेस्ड ऑन योर इंटरव्यू यू आर नॉट सिलेक्टेड। लेकिन आ, मैंने फिर एक्सप्लेन करना स्टार्ट किया। कैसे मैंने एक्सप्लेन किया ये बताता हूँ। चूंकि इस क्वेश्चन को मैंने ऐसे बनाया था, चूंकि बहुत सारा चीज आ जाता है, कंप्रेसर में प्रोसेस हो रहा है कंप्रेशन का, वो कंप्रेसर में प्रोसेस मेरा, माफ करना मेरा गला बैठ गया है लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगा।
कंप्रेसर में कंप्रेशन का प्रोसेस हो रहा है, वो भी आइसेंट्रोपिक का हो रहा है। अब मैं एक समय में बताऊंगा कैसे कि लो वेपर लो प्रेशर जो है इवापोरेटर से आके आइसेंट्रोपिकली भी कंप्रेस हो रहा है, ठीक है, ये भी हो रहा है। तो मैंने क्या किया कि प्रोसेसेस को अलग पहले बता दिया, फिर फ्लो ऑफ रेफ्रिजरेंट को अलग बताया, ठीक है। ठीक है, अब शुरू करते हैं। व्हाट आई सेड इज VCR involves four stages. VCR vapor compression refrigeration cycle involves mainly four stages using four components. That is, the first is isentropic compression using compressor, isobaric heat rejection, that is condensation using condenser, isenthalpic expansion using thermostatic expansion valve, isobaric heat absorption using, that is evaporation using evaporator. Now the cycle begins with the compressor, where the low pressure low temperature vapor refrigerant comes from the evaporator and goes into the compressor, and where it is get compressed into high pressure high temperature superheated vapor refrigerant. And then this high pressure high temperature superheated vapor refrigerant goes into the condenser. Condenser is a type of heat exchanger where this superheated vapor refrigerant rejected its heat to the surrounding and changes its phase into a saturated liquid refrigerant at constant pressure and becomes a high pressure saturated liquid refrigerant at slightly lower temperature comparing to the temperature after compressor. And now we have dryer which contains silica gel, and for any moisture if there is found in refrigerant, take care by this. Now this high pressure saturated liquid goes into the thermostatic expansion valve. It is a throttling device. It is a throttling device which regulates the flow, of refrigerant through sensing bulb connecting via capillary tube. It acts like an orifice where sudden pressure drops takes place, and due to this sudden pressure drop take place, the temperature also decreases. Due to this temperature and pressure reduction, the saturated liquid refrigerant converted into the mixture of liquid vapor refrigerant. Say liquid is 80%, vapor is 20% approx. Now this mixture of refrigerant, this low pressure low temperature refrigerant mixture goes into the evaporator. Evaporator is another type of heat exchanger where this mixture refrigerant rejects its heat to the absorb the heat from the surroundings and changes its phase into a totally vapor refrigerant at a constant pressure. And evaporator is the region where we get refrigeration effect. So now from the after evaporator we have sensing bulb. Sensing bulb senses the senses that after evaporator if only totally vapor refrigerant is coming or not, because if it is not coming it can damage the compressor, because liquid is incompressible. If liquid is coming after evaporator it can damage the compressible, it can damage the compressor. By mistake I had spoken liquid is compressible, he had it can damage the compressor. Then he said, what, liquid is compressible? I said pardon me I said pardon me sir, liquid is incompressible, by mistake I said. Then now it is connected to the sensing valve, is connected to the capillary tube, and which have some refrigerant, and in a case of low flow high flow, it contract and expand and supply in such a way that always totally vapor form of refrigerant comes after the evaporator. And now again this low pressure low temperature vapor refrigerant goes to the compressor again, and the process continues. Thank you sir. Okay, okay Gyan, what is the temperature at evaporator coil?
Sir, temperature at evaporator coil different depend upon various conditions. Like temperature, it is different for different refrigerant, and the most common refrigerant we use is tetrafluoroethane, that is R134A, and for that, for freezer compartment, it is minus 18 degrees Celsius to minus 20 degrees Celsius, and for vegetable compartment it is 4 degrees Celsius approximately, and the condensing pressure is nearby 10 bar pressure, and the temperature is 30 degrees Celsius. Okay. Hmm. Yes. Hold on, sir. So after that, he came on to Pascal's law. No, strength and weakness. Back again. Yeah. So how did you tackle the strength and weakness? Mm. The moment he asked me strength and weakness, then was the moment that I had understand that he had selected me. Okay, because the person, he only asked to them who get selected. Okay, the strength and weakness. Okay. Then I was smiling. Now I was seeing him. Sir, my strength is now. अब मैं देख रहा था उसको. ठीक है कि आप आइए सर, कौन सा शर्ट पहने हैं. ठीक है, वाइट कलर का शर्ट था. हम कहा सर, माई स्ट्रेंथ इज I am a good initiator. I like to initiate. In our college, I would like to tell you in example. In our college, there was an NGO, YSS, and from the very first year of my college, I thought of to teach to unprivileged kid, uh, and so after that I started teaching. After some time, my colleagues also joined by me, and we created an empowerment of teaching, and that later appreciated by vice chancellor also. And sir, second, I have good managerial skill. In my college I manages events and all the things. I have idea how management team works, how what are the tactics I can use to get the work done from a team. And the third is, sir, I am a self disciplined person. Sir, I don't go by the mood. If anything is to be done, I have to do it, and I do it, sir. For me, temporary mood and thing is not the issues, not and is just an excuse. So I am a self determined person. I have to do it. एंड नाउ सर, एक वीकनेस, इन वीकनेस मैंने कम्युनिकेशन स्किल बोला सर. कम्युनिकेशन बिकॉज ऑफ आई बिलोंग टू फ्रॉम, इट इज़ नॉट माई, मैंने बोल दिया कि पहले से अच्छा हो गया, लेकिन आई होप कि अच्छा होता रहे. और दूसरा बोला कि सर, आई hesitate to say no to the people, and I think I need to work on my convincing ability. And for that, I need to prioritize my thing, that what is important, that thing only I will prioritize. Then वो हंसने लगे कि जब मैंने बोला कि प्रायोरिटाइजेशन इज इम्पोर्टेंट, कि जो प्रायोरिटाइज करना है मुझे, मैं वो करूँगा. अगर मुझे नहीं सही लगता तो मैं नो बोलूँगा. ठीक है, वो बोला. ओके. ज्ञान, व्हाट इज द पास्कल्स लॉ. पास्कल्स लॉ बताया, फाइनल ईयर प्रोजेक्ट बताया. ठीक है. कांग्रेचुलेसन. फिर उसने बोला कि ज्ञान, योर ग्लास इज व्हाट, कौन से माइनस का. मैं कहा सर, इट इज computer glass gifted by my father, because from the last couple of months I am just studying 8 to 10 hours in front of interview, in front of laptop. So he said, what do you study, online study? I said, yes sir, from YouTube, from internet. Yeah. Then he said, oh, okay Gyan, so based on your interview, congratulations, you have been selected. The next processor is maritime, the next of medical and all. Then Medicals. Hmm. the moment he said that, I was like, मैंने literally ऐसे किया. Thank you so much sir, thank you so much. From the last 4 year I was waiting for this day. She's like, what, last 4 year? मैं कहा, मैं फंस गया, क्या बोल दिया. ठीक है. फिर मैंने कहा, यस सर, लेट मी टेल यू दिस. इन माय फर्स्ट ईयर, व्हेन
I was in my college. There was a COVID time. There was a recession time. No company was coming in our college. Then our seniors tried in this field, and they later guided us that this is the also field we can work. And as I always wanted to work with the big machineries, so I decided to do that. I researched for this. I searched for Anglo, and I made a dream that I have to get into Anglo one day, and this dream get true by now. Thank you so much, sir. Thank you so much. So okay, whatever. Okay. Then after, I was like, मैं खूब रोया, मैं इतना रोया, सब कुछ याद आ गया कि साला मेरा ब्रेकअप हुआ था, सब कुछ हुआ था ठीक 6 महीने पहले, 23 तारीख को, 23 नवंबर को मेरा दिल टूटा था। मैंने कसम खाया था कि साला अपना जिंदगी बदल के रख दूंगा। मैं जिम करता था, जिम भी छोड़ दिया कि किसके लिए जिम करूं, पहले नौकरी ले लूं, पहले ये कर लूं, स्पॉन्सरशिप। खूब रो रहा था प्रिंस सर को याद करके कि कितना मुझे गाइड किया, कितना अच्छा हुआ। दहक दहक के रो रहा था। आसपास के मेरे जूनियर थे, वो आ गए, अरे भैया क्या हुआ भैया? तो मैं कह रहा भाई सिलेक्ट हो गया। तो कह रहे अरे भैया ये तो खुशी की बात है। मैं कहा मैं खुशी के आंसू रो रहा हूँ। ठीक है। मैं कहा बहुत कुछ दाव पे लगा था यार, बहुत कुछ दाव पे लगा था। तो इसी के साथ मैं अपना इंटरव्यू एक्सपीरियंस समाप्त करता हूँ। मुझे एक्सपीरियंस एक्सपेयर वो नहीं करने आता था भाई, मैं ऐसा ही हूँ। ठीक है, बस मेरा सिलेक्शन हो गया भगवान भरोसे। ठीक है, वरना मेरे कम्युनिकेशन स्किल झंड है। ठीक है। भैया लोग, आप लोग मेहनत करो, मेरे दोस्त, मेरे प्यारे दोस्त, जो भी ये इंटरव्यू देखेगा, याद रखना मेहनत का, सब्र का फल आज नहीं तो कल मिलेगा, लेकिन मिलेगा। ठीक है। अच्छा, कुछ बताने वाला था कि मेरी फिलॉसफी क्या चेंज हुई लेके। ठीक है। मैं मेरे से मेरी सिस्टर ने बोला था, ज्ञान तुम इमेजिन करो कि तुम सेलेक्ट हो गए हो, तुम सेलेक्ट हो गए हो, तुम सेलेक्ट हो गए हो। ठीक है, और इमेजिन करो कि तुम सेलेक्ट होने के बाद तुमको सब कंग्रेचुलेशन दे रहे हैं, तुमको सब लोग तुम्हें वो कर रहे हैं। ठीक है, अप्रिशिएट कर रहे हैं, तुम अच्छा कर। तो फिर मेरे दिमाग में आया कि यार ऐसा करना कहीं जीत की हवस तो नहीं दिखा रही है कि तुम बहुत ज्यादा डेस्परेटेड हो। ठीक है, तो वो चीज था। तो वो चीज मेरा कन्वर्ट हुआ इस लाइन में। उस लाइन को मैंने 5 लाइन में लिखा है कि जब जब तक हार ना जाओ, अपने आप को जीता हुआ समझो। कि जब तक तुम रिजेक्ट नहीं हो जाते, ये समझ के इंटरव्यू दो कि तुम ऑलरेडी सेलेक्टेड हो। ये फिलॉसफी थी जो कि मेरी सही हो गई। ठीक है। हाँ। दूसरा, कि वाइब्रेशन वर्क्स। अगर मैं यहाँ सोच रहा हूँ कि अगर मैं यहाँ सोच रहा हूँ कि मेरा नहीं होगा ना, तो वो मेरे एक्सप्रेशन से, मेरे भावनाओं से, मेरे एनर्जी से वो इंटरव्यूअर के पास ही पहुंच जाएगा, पहले मेरे पास पहुंचेगा। इंटरव्यू देते समय इंटरव्यूई का पहले कॉन्फिडेंस डाउन होता है, तब जाके इंटरव्यू का उसके लिए कॉन्फिडेंस डाउन होता है। तो मुझे कॉन्फिडेंस डाउन, और मुझे पता था ऐसा भी समय आएगा, ऐसा भी समय आएगा कि मुझे कुछ चीजें नहीं पता होंगी, लेकिन उस समय भी मुझे काम रहना है, क्योंकि प्रिंस सर ने बोला काम रहना है। और मैं उसको ऐसे बोल दूंगा कि सर आई हैव रेड, आई डोंट नो व्हाई इट इज नॉट कमिंग टू माय माइंड। सर, बी रियल, बी फेक रियल। ओके। ओके। तुम्हें अपना काम निकलवाना है, इतना स्मार्ट रहो। तुम अपने आप को एक एनर्जी समझो, पॉजिटिव एनर्जी समझ जाओ, तो वो ट्रांसफर होके पॉजिटिव एनर्जी वो तुम्हें पॉजिटिव रिजल्ट दे देगा। अपने अंदर कोई नेगेटिविटी लाओ, वो सारे को कैंसल आउट कर देगा। ठीक है, तो सब तुम्हारे हाथ में। ये मेरे फिलॉसफी, ये मेरे पर्सपेक्टिव चेंज हो रहे हैं। ऐसा नहीं कि मैं आगे अब हमेशा सफल होता ही जाऊंगा ना, ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला। लेकिन मेरा नजरिया क्या होना चाहिए वो मैं बता रहा हूँ। ठीक है, अगर मैं कोई चीज कर रहा हूँ, जैसे मैं कोडिंग सीखने जा रहा हूँ, तो मैं पूरे सोच और पूरे विश्वास के साथ जा रहा हूँ कि मैं ऐप डेवलप करूंगा।
ठीक है, नहीं कर पाया वो बात की बात है, लेकिन मैं सीखूंगा, मैं पहला लेक्चर भी देखूंगा तो मैं अपने आप को समझूंगा कि नहीं मुझे ऐप डेवलप करना है तो ये चीज कहाँ काम आएगा मुझे। ठीक है, अगला कि कर्म का फल मिलेगा आज नहीं तो कल मिलेगा, लेकिन मिलेगा। हाँ, उसके बाद जब निकल गया मेरा ना, जितना वो था, थोड़ी देर बाद मैंने लग रहा था यार कुछ खास अचीवमेंट नहीं हुआ, ये तो कुछ खास नहीं था, नॉर्मल था, 6 क्वेश्चन पूछा, 6 क्वेश्चन का आंसर दे दिया, क्या ही किया मैंने। हाँ, फिर आया कि यार हम ग्रोन अप हो जाते हैं ना, वो कॉन्सेप्ट नहीं है कि लखपति भी साला परेशान है, खुश नहीं है, करोड़पति भी खुश नहीं है। तो अब जैसा लग रहा है कि नॉर्मल है। ठीक है, बहुत ज्यादा मैं पहाड़ नहीं तोड़ दिया हूँ, या बहुत ज्यादा वो नहीं है। ठीक है, एंग्लो से भी कई बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, उसमें जाना चाहिए मुझे। ठीक है, उसका वो निकल रहा है। तो वही है ना, मेरे अंदर अब सिनर्जी की वो आ रही है कि सिनर्जी में यार जाना है, सिनर्जी में जाना है। ठीक है, तो एक लाइन मैंने लिखा कि जो मिल गया वो मिट्टी है, जो ना मिला वो सोना है। ठीक है, दुनिया एक माटी का खिलौना है, जो मिल गया वो मिट्टी है, जो ना मिला है सोना है। उससे जाके पूछो कि जिसका एंग्लो में रिजेक्शन हुआ है, जितना मुझे खुशी नहीं हुई है, जितना किसी को खुशी नहीं होता है पाने की, उससे ज्यादा दुख, गम होता है खोने का, दुख ही होता है खोने का। यू आर गेटिंग माई पॉइंट। Yeah. और लास्ट एंड लास्ट इन द पोस्ट इम्पोर्टेंट, मेरा सिलेक्शन इसलिए हुआ क्योंकि जो लड़ सका है वही तो महान है। मैं ये छोड़ दिया था कि मैं हूंगा रिजेक्ट या सेलेक्ट, मैं फाइट करूंगा, मैं अपने फेफड़े से निकाल के आंसर दूंगा, लेकिन दूंगा। मैं बीच बीच में वर्ड गलत बोल दे रहा था, मैं उसको सही कर रहा था, और गुस्सा के सही कर रहा था। ठीक है, वहां आज करना, मैं जब थर्मोस्टेटिक एक्सपेंशन वाल्व बन रहा था तो ओरिफिस को ओरिफिस बना दिया था मैंने। जब कंप्रेसर बोल रहा था मैं खुद कंप्रेस हो गया था कि कंप्रेसर, इट इज गेट कंप्रेसर हो, बन जाओ तुम एक, तुम करोगे साला। उसके बाद मैं कहा यार लाइफ का नजरिया चेंज हो गया यार। साला जब तक तुम हारो मत, किसी भी युद्ध में लड़ने के लिए अपने आप को जीता हुआ समझो। हार को, जो हार हो जाएगा उसके बाद देख लेना, लेकिन बहुत जरूरी है भाई। ये मेरे जिंदगी का ऐसा नहीं है कि मैं बहुत अच्छा, बहुत बड़ी चीज नहीं कर दी मैं एंग्लो में ये सिलेक्शन पाके या कुछ नहीं, लेकिन लाइफ का जीने का ढंग आगे जो है, ये जो नजर जो, ये तो अभी इतू सा स्टेप है, लेकिन ये पिछले 6 महीने मेरे लिए बहुत कुछ सिखा के गए। तो मेरे भाइयों, जो भी बाद में देखेगा इंटरव्यू, ठीक है, आप देखे हो कि मेरा इंग्लिश कितनी वाहियात थी। मैं एक सिंपल सी स्टोरी नहीं बता पाया, फिर भी फिर भी मेरा सिलेक्शन हुआ। मैं अगर पहले से होमवर्क नहीं करता तो शायद मैं लॉजिक और टेक्निक जानते हुए भी चीजों को एक्सप्लेन नहीं कर पाता, क्योंकि मेरा कम्युनिकेशन स्किल सही नहीं। ठीक है, तो आप होमवर्क करो, वो कॉन्फिडेंस देता है। ठीक है, अच्छा हाँ, कॉन्फिडेंस का बात आ रहा था कि कॉन्फिडेंस जो है क्यों इतना ज्यादा, कॉन्फिडेंस क्यों इतना रोल प्ले करता है, और कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है? वही मेहनत से आता है। आप कोई भी, एक कहावत है ना, लीव नो स्टोन अनटर्न्ड। मैंने जितने पॉसिबल क्वेश्चन थे, मैंने 60 क्वेश्चन तो 70 क्वेश्चन तो बस इलेक्ट्रिकल के तैयार किए थे। इजंट राइट एविटो? हमने Yeah. 60 क्वेश्चन Hmm. तो इलेक्ट्रिकल के तैयार किए थे, और एंग्लो के क्वेश्चन 60 नहीं होंगे पूरा मिला के अगर बोला जाए तो भाई मेहनत करो। अब मेरा हो गया है मैं हमेशा, अब मेरे दोस्तों का जो भी अपकमिंग एस्पायरेंट्स है उनके लिए खड़ा रहूंगा। ठीक है, लेट्स लर्न का कॉन्सेप्ट यही है कि हम साथ में सीखेंगे एक दूसरे को। आज एविटो के, लाइक योर एक्सपीरियंस, योर टेक्निक्स, योर लॉजिक, योर इनपुट्स, वो मैंने लिया, उससे मैंने अपने आप को फीडबैक दिया। अब मेरे इनपुट्स किसी को काम आएंगे, मेरे मेंटल इनपुट्स है मेंटली, कि मेंटली तुम कैसे स्ट्रांग रहोगे। तुम तो पढ़ पढ़ के जान सकते हो कि साला सेंट्रीफ्यूगल पंप में
पान हवा आ गया तो उसका लॉजिक क्या है, लेकिन दिल में जो हवा आ गया, जो नर्वसनेस आ गई, तो उसके वजह से वो सेंट्रीफ्यूगल पंप का हवा नहीं बता पाओगे क्या करता है, उसको करो। उसके लिए वो चीज जो है मैं लैक कर रहा था, टेक्निकल में तो लैक नहीं कर रहा था टेक्निकल भाई, लेकिन मेंटली भी बहुत ज्यादा वो होना चाहिए। बाकी कितने लोगों ने मुझे सपोर्ट किया, मॉक लिया, आ, मैंने इतने मॉक्स दिए, हर चीज दिए, कैमरे के सामने डिस्कशन किया, मेरे साथ कई लोगों ने डिस्कशन किया, हम एक एक चीज को बारीकी से गए। हमने थर्मोस्टेटिक एक्सपेंशन वाल्व के अंदर टेम्परेचर किस लिए चेंज होता है, क्योंकि आइसेंथेल्पिक प्रोसेस में टेम्परेचर चेंज नहीं होता है इन केस ऑफ आइडियल फ्लूइड। इस कॉन्सेप्ट का क्या कॉन्ट्राडिक्ट करता है, ये सब इसके बारे में बारीकी से पढ़े। तो हर चीज इतने आसान भाषा में ऐसे नहीं आई, आसान भाषा में इसलिए आई कि इसलिए क्योंकि हमने इसके अंदर घुस के इसके अंदर के सारी कठिनाइयों को समझा, तब जाके वो जो है आसान बना। तो वही है चीजें। हम्म, और मुझे लगता है कि ये जो हमारा जो था सेशन ओशन, हमने कंप्रेसर सेफ्टीज के बारे में पढ़ा, हर चीज पढ़ा, समझा कि क्या होता है, हर क्रॉस क्वेश्चन को, जितने भी क्वेश्चन थे, हर क्रॉस क्वेश्चन को समझा कि कौन सा क्रॉस क्वेश्चन पैदा हो सकता है इससे, और कैसे हम इसको जवाब देंगे। ठीक है, तो ये चीजें और ये चीजें चलती रहेंगी। अभी तो हमें लंबी लड़ाई लड़नी है, अभी बहुत सारी चीजें, अभी विजनरी पैकेज है, अचीवर पैकेज है, प्राइसलेस पैकेज है, अब तो और इलेक्ट्रिकल पैकेज, इलेक्ट्रिकल एडवांस पैकेज, और ऑक्सिलरी इंजन पैकेज, ऑक्सीजन और इंजन, सर हाँ। का भी अभी ऑटोमोबाइल करके कोई पैकेज बना रहे हैं सर, प्रणीत सर बना रहे हैं। ठीक है, उसके बाद एक और सर बना रहे हैं। अभी तो ये कारवां चलता रहेगा, अभी तो हम कुछ नहीं जानते, अभी तो हमको बड़ा से जहाज को हैंडल करना है। और नॉलेज पावर है, मैं तो कहता हूँ, आपके पास नॉलेज है तो आप स्टैंड करते हो, आपकी आत्मा, आपकी विल पावर स्ट्रांग होगी, आपकी हर चीज रहेगी, अंदर से आएगा। और Okay, so as per Ajaz had mentioned, he wanted a summary of the tips for the interview, specifically for Praganza. हाँ, मैं हिंदी में बोलना चाहूंगा कि समरी क्या है Mm-hmm. ब्रगंजा सर के सामने, कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। कि पहला क्वेश्चन को इतने बढ़िया तरीके से बताओ कि उसी में वो सोच जाए कि वाह कोई बंदा आया है। ठीक है, और पहले क्वेश्चन जो है जनरली पंप के होते हैं, पंप को ऐसा चाटो, ऐसा चाटो कि पंप जो है सूख जाए। ठीक है अ, तो दूसरा कि कॉन्फिडेंस जो है मेंटेन करके रखो, चेहरे पे स्माइल रखो, स्माइल रखो या ना रखो, लेकिन दिमाग अपने आंखों के पीछे देखो, दिमाग में देखो। ब्रजंगा सर को देखने की जरूरत नहीं है, वो कभी ऐसे करेंगे, कभी ऐसे करेंगे, तुम उलट जाओगे, वो बीच में इंटरव्यू का वो बंद कर देंगे। ये पूरा दिमाग का खेल है। और हाँ, ये एक चीज मुझे बहुत अच्छे से पता चला कि ब्रजंगा सर इस बात से इंटरेस्टेड नहीं है कि टेम्परेचर पे इवापोरेटर कॉइल का टेम्परेचर क्या होता है, वो इस कॉन्सेप्ट से इंटरेस्टेड है, वो ये कॉन्सेप्ट जानने में इंटरेस्टेड है कि टेम्परेचर का इवापोरेटर कॉइल, इवापोरेटर कॉइल ऑफ टेम्परेचर किस चीज पे डिपेंड करता है, वो डेटा से ज्यादा। मैं क्या, कोई इंटरव्यूअर डेटा से कैसे बहुत ज्यादा वो रहता है इन्फ्लुएंस, क्या करना है उनको, -18 पे अपना कपड़ा गर्म करना है या ठंडा करना है, सॉरी, ऐसा तो करना नहीं है। तो वो चीज कॉन्सेप्ट है, जैसे मैं बता रहा हूँ कि, और हाँ, कि कोई चीज आपने गलत बोला बृहगंगा सर के समय, अगर आप उसके लिए बहुत ज्यादा श्योर हो कि नहीं मैंने सही बोला, तभी जो है आप जो है सर को घसीटिएगा, क्योंकि सर बहुत कम समय में निपटा देते हैं शुरुआत के क्वेश्चन के। और मैं इतना कहूंगा कि कॉन्फिडेंस आप मेहनत से आएगा आपका। ठीक है,
और कम्युनिकेशन स्किल ऐसी बात नहीं है, भावनाएं को जब एक्सप्रेस एक्सप्रेस करना है, लड़ाई लंबी है, हम सबको पता है कि साला पहला लैंग्वेज तो है नहीं हमारा इंग्लिश, हम इतने भी परफेक्ट हो नहीं सकते, वी आर नॉट एविटो लेवरेंसो। हाँ, वी आर अ You ज्ञान don't पर, have to be also. हाँ, ज्ञान प्रकाश फ्रॉम द स्मॉल टाउन नियर बाय वाराणसी, फ्रॉम देयर ओनली आई हैड बीन ब्रॉट अप रेज अप देयर यू। सब तो होता है, लेकिन आपकी मेहनत, आपकी शिद्दत, आपकी लगन, आपका एक्सप्रेशन, आपका कॉन्फिडेंस, हर चीज मायने रखता है। और आपको लगता है, हमें लगता है कि सर्टेन सेट्स ऑफ क्वेश्चन हैं, इसको हम पढ़ लेंगे और इंटरव्यू में जाके उसको बक देंगे, हो जाएगा। अरे भाई, उस सर्टेन सेट्स ऑफ क्वेश्चन तुम्हारे कई कॉन्सेप्ट से आया है। आईसी इंजन तुम पढ़ लोगे, दो रट लोगे, 10 10 डिफरेंस, और तुमको यही नहीं पता होगा कि फ्लाई व्हील जो है हमारा 2 स्ट्रोक में क्यों हल्का यूज करते हैं और 4 स्ट्रोक में क्यों भारी यूज करते हैं, तो तुम्हारे अंदर वो फील ही नहीं आएगी, तुम अगले दिन भूल जाओगे। रोज रोज थोड़ी ना रटोगे 2 महीने का, अगर तुमको इंटरव्यू का चांस मिला है तो उसको जाके तुम समझोगे कि टॉर्क क्यों प्रोड्यूस कम, इरेगुलर कम होता है, क्योंकि ये 2 बार में ही पावर स्ट्रोक दे देता है, केवल एक निगेटिव स्ट्रोक होता है। ये 4 बार में 4 बार ऊपर नीचे जाता है और 1 बार केवल पावर स्ट्रोक देता है। 3 बार में तो वो एनर्जी लेता है, इसलिए जो है वो तब तक वो एनर्जी जो है बड़े से रोटेशनल काइनेटिक मास में जो है, रोटेशनल मास में जो है उसके इनर्शिया में इन्वेस्ट कंजर्व रहता है बाद में। Yeah. तो ये चीजें हैं। और कह देगा कोई कि नहीं, आज तक क्यों लोग 3 3 बार, क्या क्वेश्चंस फिक्स नहीं है? फिक्स है क्वेश्चन। ये 100 क्वेश्चन मान लो, तीनों इंटरव्यू मिला के 100 क्वेश्चन से ज्यादा नहीं होगा। 100 क्वेश्चन तो मैं बहुत ज्यादा बोल रहा हूँ। फिर भी लोगों को 2 2 महीने मिलता है, क्यों रिजेक्ट हो जाते हैं? क्योंकि उस क्वेश्चन के पीछे तुम्हारा लॉजिक, कॉन्सेप्ट, तुम्हारा अंडरस्टैंडिंग, तुम जब बताओगे वो निकलेगा, वो एनर्जी निकलेगी कि नहीं तुम जानते हो। जब तुम बोलोगे कि नहीं, कि ड्यू टू दिस प्रेशर एंड टेम्परेचर रिडक्शन इन थर्मोस्टेटिक एक्सपेंशन वाल्व द प्रेशर ड्रॉप्स एंड बिकॉज ऑफ दिस प्रेशर ड्रॉप दैट, वो तो फंसा देगा ना। उसके पीछे कितने सारे मैंने स्टूपिड स्टूपिड क्रॉस क्वेश्चन सुने हैं कि ब्रजंगा सर ये पूछ के निकाल दिया कि गियर पंप में कौन सा यूज होता है, क्या डिस्चार्ज क्रिएट करता है, तो वो कौन सी लॉ यूज होता है, क्या होता है रिजल्ट। तो कोई कह रहा है गे लुसिक्स लॉ यूज होता है, ठीक है, और ये यूज होता है कि गे लुसिक्स। अरे गे लुसिक्स लॉ तो कॉमन है, अगर वॉल्यूम कम होगा तो प्रेशर बढ़ेगा, ये वो। गियर पंप में कैसे डिस्चार्ज क्रिएट होता है? That's in pressure cooker. हम्म, Hmm. गियर पंप में डिस्चार्ज कैसे क्रिएट होता है? मैंने इतना डिस्कशन किया, इतना डिस्कशन किया, उसके बाद मुझे जब पता चला कि अरे यहाँ दोनों का वॉल्यूम तो सेम ही होता है सेक्शन का। मुझे इससे पहले ये पता था कि इस सेक्शन का वॉल्यूम, सक्शन साइड का सेक्शन का वॉल्यूम बड़ा होता है, उसके वजह से प्रेशर यहाँ कम रहता है ना। वो जो गियर रोटेट करता है उसके वजह से एक साइड वॉल्यूम बढ़ जाता है और एक साइड वॉल्यूम कम हो जाता है। When gear come out of the mesh, additional volume is created and hence pressure get reduced and becomes lower than the atmospheric pressure, and due to which fluid gets sucked into the casing and get trapped between the teeth of gear, and when gear rotates it pushed out through the perimeter of casing into the discharge side. In discharge side, when the gear in discharge side, gear come into the mesh, and when the gear come into the mesh, pressure increased, volume gets decreased and pressure get increased. That's how we get pressurized fluid in a gear pump at discharge side. क्योंकि ये 2 लाइन है, बस दो दो लाइन है, क्योंकि एक लाइन में, एक सक्शन लाइन में गियर जो है आउट ऑफ द मेस होता है और ये दूसरे वाले में गियर इनटू द मेस होता है, ठीक है। तो ये चीजें मुझे पता है, मैंने 40, अभी 50 लेक्चर, हमने 50 डिस्कशन किया है। मुझे 25 डिस्कशन के बाद समझ में आया, जब मैं इसके बारे में विचार कर रहा था, फिर अचानक से आया कि एक बार देखूं क्या है यूट्यूब पे। लोगों ने हमेशा बताया मुझे कि ऐसा ऐसा होता है, लेकिन मैंने गलत समझा उसको।
मैंने उसको गलत समझा। फिर मैंने कहा ड्रीमर पैकेज में सर नहीं बताया क्या? फिर ड्रीमर पैकेज उठा के देखा, मैं कहा ड्रीमर पैकेज में भी सर ने वैसे ही बताया, लेकिन सर ने गियर के पास वॉल्यूम बढ़ाने का सिंबल नहीं लगाया, सक्शन पाइप के पास वॉल्यूम बढ़ाने का सिंबल लगा दिया, तो मुझे लगा सक्शन पाइप का वॉल्यूम बड़ा होता है। तो ये चीजें, छोटी छोटी बारीकियां कैसे वो कम हुई, उसके बाद हमारा कॉन्सेप्ट हुआ क्लियर। ये चीजें हम्म, थी। और रही बात ड्रीमर पैकेज की, ड्रीमर पैकेज जो ऐसा पैकेज है, हमारे पास समंदर है मैकेनिकल, हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन ड्रीमर पैकेज अप टू डेट है। जितने बार आप ड्रीमर पैकेज देखोगे उतनी बार आपको नई चीज सीखने को मिलेगी, उतनी बार आप बारीकी से चीज सीखोगे। ठीक है, क्योंकि प्रणीत सर ने आसान भाषा में बनाया, आसान भाषा में बनाना इज द मोर डिफिकल्ट टास्क। बुकिश लैंग्वेज तो कोई भी बोल देगा रट के, अरे जो लेमैन में समझा दे चीजें, फ्राडेज ला, फ्राडेज ला, लेंज ला, पढ़ते पढ़ते दिमाग खराब हो गया था कि कैसे अपोज चेंज द कॉज विच प्रोड्यूसिंग इट, इट अपोज द कॉज, व्हाट द कॉज, द लेसन कॉज, फ्राडेज लॉ, व्हेन एवर द इट रोटेट्स इट चेंजेस मैग्नेटिक फील्ड। नहीं, जब मैंने खुद से समझाया, डिस्कशन किया इसके लिए हमने, तब जाके समझ में आया, अरे नहीं, या तो चार, 2 लाइन 4 लाइन बोलने से अच्छा है कि नहीं। हमें इससे इससे पहले कोई ये बोलता था, व्हेन इधर मैग्नेटिक फील्ड रोटेट्स, व्हेन इधर मैग्नेटिक फील्ड चेंज, और इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज, इलेक्ट्रिक सर्किट चेंज इन अ मैग्नेटिक फील्ड, देन इलेक्ट्रिक EMF इज प्रोड्यूस। तो भैया या तो ये मोशन में रहेगा या तो ये मोशन में रहेगा, एक दो केस में तब होता है। भैया इससे अच्छा है कि मैं इसको बोल दूं कि देर आर, एक केस बनाऊंगा और बोल दूं कि रिलेटिव मोशन होगा, वो ज्यादा सिंपल लैंग्वेज है कि नहीं? किसी एक का मोशन में होना और दो दो बार उस चीज को बोलना, इससे अच्छा इसको आसान भाषा में ये बना दो कि रिलेटिव मोशन में होना। तो ये कैसे आती है? ये प्रैक्टिस से आती है, जब से आती है। तो यही करना है हमें, हमारा लेट्स लर्न का ये कॉन्सेप्ट है। मैं अपने बाड़ी को विराम दूंगा, बहुत थक चुका हूँ। ठीक है। okay then, हाँ, so we call it a end to the current video that you have created. या And if they do want to, as you mentioned that हाँ, we had gone over all of the electrical part, non-technical, full 2 hours, whatever the sessions are there, it's all uploaded, so you can हम्म, have a look through all of that if they want to. हम्म। We had also discussed the technical things and also interview experience of the other Hmm. peoples. There's a lot of insight they can get. Mock interviews, Yeah. whatever. Hmm. Hmm. And if they want mock, they can Huh. contact us at any point of time. Yeah. For mocks, we are always there. Thank you so much. Thank you from Let's Learn committee. Thank you, Avito. Thank you, everyone. Thanks guys, bye.